and welcome to Shriram's IES. In this video, we will be discussing about the key terms which are important for your budget and economic survey analysis. Now, this video is an investment for all of you who are preparing for UPSC because budget and economic survey will be released and now you all must understand the basics of it. Why? Because UPSC in the past papers has asked questions from these terms. Not only that, but UPSC also went to ask numerical questions on deficits and multiple other things. So in this video, we will be solving all the numericals of these, I would say, terms, whether that is revenue deficit, capital deficit, or whether that is budget deficit, fiscal deficit, everything will be solved with numericals. So welcome to Shriram's IES and let's analyze all the key terms. So there I have selected around 20 terms which are important for UPSC prelims. Now, let's analyze that why are these terms important, because they will help you to analyze budget and economic survey better and you will have a good hold of the understanding of this I would say that this document which comes in around 800 to 900 pages cumulatively with budget and economic survey both. As you might have listened to the budget speech or when the economic survey was presented, you might have gone through the highlights and the economic survey content also. But this video is actually going to be a road ahead before you start analyzing these two documents properly. Now let's understand what all are we going to discuss. We will be discussing the constitutional framework behind both economic survey and budget. We will also discuss the indicators, the deficits, and what all lies in this, I would say, scenario and what all terms does economic survey and budget analyze. Usually they have common set of terminology, and in national income accounting per se and in the monetary policy and fiscal policy, we do discuss all of this. Thereby, I have just summarized all of it for your better analysis. So the first thing which we will discuss is economic survey. What is economic survey? It is an official, I would say, annual document. This is prepared by Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance. What economic survey does is it reviews India's economic performance. India's economic performance, it analyzes growth, inflation, employment, and the future projections of growth also. Further, it is presented one day before the union budget. So it is presented prior to budget. It analyzes and remember that it is just advisory in nature. ये डॉक्यूमेंट लीगली बाइंडिंग नहीं होता है. ये डॉक्यूमेंट इसलिए पेश किया जाता है ताकि जो पास्ट एक ईयर है उस पूरे साल का जायजा लिया जाए, उसकी पूरी एनालिसिस की जाए, उसका हमें पता चले कि कहाँ पे ग्रोथ हुई है और किस सेक्टर में ग्रोथ नहीं हुई है, कौन सी पॉलिसी का क्या आउटकम आया है, इंडिया अभी कहाँ पे स्टैंड करता है. The state of economic affairs will be the first, or I would say state of Indian economy will be the first chapter of economic survey. That will totally deliberate upon what all parameters have we achieved, what was the growth of India, what is the future growth projection of India, growth rate क्या रहा है, हमारा GDP किस नंबर पे पहुंचा है, हमने employment और unemployment rates हमारे यहाँ कितनी है. This all will be discussed. Now, this is not legally binding. Remember this term. One more thing which we need to understand is union budget. Union budget, this is an annual financial statement. UPSC lately asked a question last time that budget word is mentioned in the constitution or not. But it is not mentioned. What constitution mentions under article 112, it says that the government must present an annual financial statement which should encompass all the receipts and should propose all the expenditures which government is about to do. Which means that गवर्नमेंट का इनकम कहां से आएगा और एक्सपेंडिचर कौन कौन सा है गवर्नमेंट का, ये दो चीजें डिस्कस होती है बजट के अंदर. अब रेवेन्यू के मैटर में ये भी देखना है कि कहां से पैसा आ रहा है. इट कैन बी ईदर कैपिटल रिसीट और इट कैन बी द रेवेन्यू रिसीट. When we talk about expenditure, it can be either capital expenditure or the revenue expenditure. So thereby we need to understand all of the terms. So this document actually summarizes and authorizes Article 112. Authorizes the government. Authorizes the government for what? To collect taxes, spend the public money which is collected in the consolidated fund of India. Further, it reflects the priorities and policies of government.
कि गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसी लाने वाली है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेके हो, चाहे वो मनरेगा को लेके हो, चाहे वो जी राम जी बिल को लेके हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना हो कम करना हो, हर एक चीज के ऊपर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहने वाली है, गवर्नमेंट कौन कौन सी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर कहां होने वाला है, दिस ऑल इज समराइज्ड इनटू बजट. Thereby, unlike the economic survey, this document is legally binding and is passed by the parliament through the act. एंड इस चीज के लिए दो एक्ट्स आते हैं, दो बिल्स आती है, अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल. वो दोनों बिल्स क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे. So thereby the key difference between budget and economic survey would be that budget is legally binding, it allocates money for the future, while as economic survey reviews the past analysis and it does the analysis of the past year. पिछले एक साल का एनालिसिस इकोनॉमिक सर्वे हमें प्रोवाइड करता है. Moving ahead, इकोनॉमिक सर्वे और बजट के बीच में जो की डिफरेंस है, that this is not binding, this is legally binding. This proposes the future plans, this is about past and present. This is analytical in nature and it reviews the economy. This allocates the funds and talks about where the government will generate their funds from. Understood till now? One more thing which we need to understand, that in budget there is one more particular aspect of interim budget. अभी interim budget होता क्या है? ये तब पेश किया जाता है जब गवर्नमेंट जो है वो जाने वाली हो. This is temporary time period, जहां पता है गवर्नमेंट को कि आगे इलेक्शंस होने वाले हैं, नई गवर्नमेंट बनने वाली है, तो गवर्नमेंट पहले ही क्या करती है, इस साल के लिए, इस टाइम पीरियड के लिए, जब तक इलेक्शंस होके हो और दूसरी गवर्नमेंट बने तब तक के लिए जो बजट पेश किया जाएगा उसको इंटरिम बजट बोलते हैं. This interim budget is presented when the general elections are due and full term budget cannot be presented. अब ये interim budget में क्या क्या चीजें डिस्कस होती है? This covers the essential expenditure only, which is essential for the government to run for the next time period. Further, it avoids major policy announcements. कोई भी नई पॉलिसी, नई स्कीम जो कि एक साल से ज्यादा की नहीं हो, जो कि इस साल पूरे एक साल की पॉलिसी ना हो, उन पॉलिसीज को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे इनको पता होता है कि जब नई गवर्नमेंट आएगी तो बजट दूसरा आएगा. अंडरस्टूड? दिस इज वैलिड टिल द न्यू गवर्नमेंट प्रेजेंट्स अ फुल बजट. दैट इज इंटरिम बजट. वन मोर थिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाट इज वोट ऑन अकाउंट एंड व्हाट इज वोट ऑफ क्रेडिट. सी, you might be well aware of this fact that बजट जो है अब 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है. इससे पहले ये बजट लेट प्रेजेंट किया जाता था, कभी कभी एंड ऑफ द फरवरी मंथ और ऑन द 15th ऑफ फरवरी मंथ. बट रिमेंबर, जब तक बजट पास नहीं होता तब तक गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा. तो गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए जो मनी चाहिए होगा वो उनको एडवांस में दिया जाता था, 2 महीने का खर्चा. दिस यूजुअली सम्स अप टू अराउंड 1/6 ऑफ द टोटल बजट. दैट इज वोट ऑन अकाउंट. This is an advance payment to government to incur usually the expenses for 2 months. The purpose is to meet the routine expenditure. जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है तब तक के लिए, जब तक बजट पास नहीं होता, उस चीज को फुलफिल करने के लिए आता है वोट ऑन अकाउंट, जो कि अब नहीं आता, पहले आता था. वन मोर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर, वोट ऑन क्रेडिट और वोट ऑफ क्रेडिट, ये भी एक ऐसा एक्सपेंडिचर और एक ऐसा अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट को तब जरूरत पड़ता है जब कोई इमरजेंसी आती है. इमरजेंसी का मतलब क्या है? दिस इज ग्रांटेड फॉर अनएक्सपेक्टेड और इमरजेंसी सिचुएशंस. कभी वॉर हो गया, कभी डिजास्टर आ गया. दिस अमाउंट इज नॉट स्पेसिफाइड, क्योंकि हमें पता ही नहीं है किस टाइप का कितना खर्चा होने वाला है, तो पहले ही स्पेसिफाई करके नहीं रखेंगे. इसीलिए इसको बोलते हैं वोट ऑफ क्रेडिट. दिस इज फ्लेक्सिबल एंड अर्जेंट इन नेचर. जब कोई अर्जेंट एक्सपेंस होगा, जब कोई अर्जेंट एक्सपेंडिचर होगा, तब ये जरूरत पड़ता है. अंडरस्टूड यहां तक? One more thing which we need to understand is appropriation bill. Appropriation bill का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी बिल होती है जो कि गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी देती है किस चीज की, टू विथड्रॉ मनी. कहां से गवर्नमेंट पैसा निकालेगा? फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कहां से पैसा निकालेगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. इस फंड से पैसा निकालने के लिए एक एक्ट लगता है जिसको हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन एक्ट. ये बिल जब पास होता है तो ये बिल एक्ट बनेगा. This is introduced after the demand for grants is presented. What are demands for grants? Like simple. जब कोई मिनिस्ट्री, say for example social justice और say for example Ministry of Agriculture, उनको पैसा चाहिए पीएम किसान योजना के लिए. अब उनको पैसा चाहिए तो they will present a demand and then that demand will be granted with the money. अब इसी चीज को समझना है दैट ये जो डिमांड है ये पास होगी, उसके बाद सारी डिमांड्स को कलेक्टिवली पास किया जाएगा और उसके बाद ये पूरी डिमांड्स का एक ब्यौरा होगा.
पूरी डिमांड्स का जो समरी होगा दैट विल बी अप्रोप्रिएशन बिल, एंड इस अप्रोप्रिएशन बिल को पास होने के बाद जब ये प्रेजेंट किया जाएगा, पास हो जाएगा, तभी गवर्नमेंट जो है पैसा निकाल सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. दिस कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज दे ऑलरेडी हैव पास्ड द डिमांड्स. अंडरस्टूड? The critical point is that without this bill, no spending is legally possible even after the budget is approved. अगर अप्रोप्रिएशन एक्ट पास नहीं होता है तो गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं होगा, गवर्नमेंट पैसा स्पेंड नहीं कर सकती है, विड्रॉ नहीं कर सकती है पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, इवन आफ्टर बजट इज पास्ड. वन मोर थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर, दैट इज फाइनेंस बिल. ये फाइनेंस बिल जब पास होगा तो ये फाइनेंस एक्ट बनेगा. नाउ रिमेंबर, दिस इज डिफरेंट from the financial bills, financial bill category 1, financial bill category 2 or the money bill. This is different than that. This is a finance bill. It gives the legal effect to taxation proposals. गवर्नमेंट ने जो भी टैक्स लागू करने हैं, टैक्स बढ़ाने हैं, टैक्स में कोई चेंज लाना है, टैक्स का अमाउंट कलेक्ट करना है लोगों से, उस चीज के लिए एक एक्ट लगता है और उस एक्ट के लिए पहले एक बिल आती है जिसको बोलते हैं फाइनेंस बिल. वो बिल जब पार्लियामेंट में पास होता है तो वो बनता है फाइनेंस एक्ट. वो एक्ट जब पास होता है तो उसी एक्ट में लिखा होता है नए कौन से टैक्सेस लगने वाले हैं, चेंजेस कौन सी आने वाली है टैक्सेस में, अमेंडमेंट्स कौन से आने वाले हैं टैक्स लॉज में, और उसी बेसिस पे दिस बिल मस्ट बी पास्ड विद इन 75 डेज ऑफ द इंट्रोडक्शन. दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट व्हिच यू मस्ट रिमेंबर. अंडरस्टूड? यहां तक तो हमें समझ में आ गया बजट, और बजट के साथ दो बिल्स आती है, इन दो बिल्स को पास करना होता है. अंडरस्टूड? फॉर अप्रोप्रिएशन एंड कलेक्शन ऑफ मनी. क्लियर? नाउ वन मोर थिंग जो हमने अभी डिस्कस किया था, दैट इज डिमांड फॉर ग्रांट्स. डिमांड फॉर ग्रांट्स का मतलब क्या बोला था मैंने, कि हर एक मिनिस्ट्री अपनी अपनी एक डिमांड पेश करेगी, उस डिमांड को क्या करेंगे, उस डिमांड को पास करेंगे, और उसके बाद उस डिमांड को ग्रांट मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा, और उसके बाद ही उस प्रपोजल को पास किया जाएगा बजट में, और वो प्रपोजल पेश होगा अप्रोप्रिएशन बिल में, और वो पैसा सारा निकल जाएगा, और वो पैसा एलोकेट होगा उस मिनिस्ट्री को जहां से वो डिमांड आई थी. But every demand which is presented in the budget has to go through a parliament discussion. हर एक डिमांड के ऊपर डिस्कशन होता है, but the problem is that बहुत सारी डिमांड्स हैं, more than 300 डिमांड्स, तो हर एक डिमांड के ऊपर जो है बजट के सेशन में यूजुअली डिस्कशन नहीं होता है. तो जितना भी डिस्कशन हो गया उसके बाद ये समझ में आता है दैट कुछ डिमांड्स अभी भी रह गई है, तो जो सारी डिमांड्स रह जाती है उन सबको एक बार में पास किया जाता है अंडर द मोशन गिलोटिन. क्लियर? So Lok Sabha votes on this. There is a detailed statement जिसमें ये मिनिस्ट्री बताती है कि हम जो ये पैसा मांग रहे हैं ये किस चीज के लिए मांग रहे हैं. One more thing, for example, each ministry places its demand before the Lok Sabha for discussion and then votes. These demands make the basis of Appropriation Act and government's spending authority. That is from where government takes the money from Consolidated Fund of India and then spends according to these demands. Clear? समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. नाउ अभी तक हमने समझा दैट गवर्नमेंट जो है वो कहां से पैसा लाएगी, कहां पे पैसा खर्च करेगी, बट एक और चीज है जो हमें समझनी है दैट गवर्नमेंट के पास जो ये पैसा आता है, दीज आर नोन एज रिसीट्स. मतलब गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड सम मनी. दिस कैन बी रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट. अंडरस्टूड? Receipts can be revenue receipts or capital receipts. Now revenue receipts कौन से receipts होते हैं? जो गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करेगा through taxes, like direct taxes and indirect taxes. What is non-tax revenue? These are also receipts only, revenue receipts. Non-tax revenue क्या होता है? Non-tax revenue जो फीस और फाइन गवर्नमेंट लगाती है किसी भी इंसान के ऊपर, चाहे कोई कंपनी वायलेट करती है किसी भी लॉ को, उसके ऊपर फाइन लग गया, चाहे कोई इंसान वायलेट करता है किसी लॉ को, उसके ऊपर फाइन लग गया. फीस, चाहे वो लाइसेंस फीस हो, चाहे वो फीस हो कोई कंपनी स्टार्ट करने का, चाहे वो फीस हो कोई प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करने का. डिविडेंड्स, गवर्नमेंट के पीएसयूज जो प्रॉफिट कमाते हैं वहां से जो डिविडेंड कलेक्ट होता है दैट इज डिविडेंड. इंटरेस्ट इनकम, गवर्नमेंट ने अगर किसी को लोन दिया है, से स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है, तो वहां से जो पैसा आएगा, जो वहां से इंटरेस्ट इनकम आएगी, दैट इज नोन एज रेवेन्यू रिसीट्स. रिमेंबर, ओनली द इंटरेस्ट इनकम. अंडरस्टूड? Thereby, the key feature is that the receipts that do not create liabilities or reduce assets. Remember this. ये वो पैसा होता है जिससे liability नहीं बनती है और जिससे assets भी decrease नहीं होते हैं. मतलब क्या है इस चीज का, कि हमने कुछ बेचा भी नहीं,
जो हमारे पास एसेट था वो हमने बेचा भी नहीं, या अगर हमने कहीं पे लोन दिया हुआ है वो हमारा एसेट है, हमने किसी को लोन दिया हुआ है, अब उसने लोन को रीपे किया तो वो कैपिटल रिसीट होगा। यहाँ पे बस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट आया है उसको रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे। अंडरस्टूड? वन मोर थिंग, दीज आर रेगुलर एंड रिकरिंग इनकम फॉर द गवर्नमेंट, कि ये जो पैसा है ये बार बार आता जाता है गवर्नमेंट के पास। अंडरस्टूड? सिंपल। नाउ रेवेन्यू रिसीट्स, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने जो कलेक्शन किया है, टैक्स का रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के पास आया दैट वाज 6 लाख करोड़, और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के पास आया वो 1 लाख करोड़ रुपीस था, प्लस जो जीएसटी का पैसा, इनकम टैक्स का पैसा, डिविडेंड एंड फीस का पैसा, ये सारा पैसा जो गवर्नमेंट के पास आया, दिस वाज टोटल 14 lakh crore rupees, and total revenue receipt would be 14 plus 1, that is 15 lakh crore rupees. Remember, हमेशा ये याद रखना है, there is no asset creation, there is no borrowing involved in revenue receipts. Understood? चलो, one more thing which we need to discuss is capital receipts. Capital receipts का मतलब क्या है? ये वो पैसा है जो आया हुआ पैसा है, हमारे पास गवर्नमेंट के पास पैसा आया है, बट कहां से आया है? Either they have created a liability or they have reduced their assets. मतलब क्या है इस चीज का, कि गवर्नमेंट के पास कोई एसेट था, गवर्नमेंट के पास कोई पीएसयू था, गवर्नमेंट के पास कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, उसको प्राइवेटाइज कर दिया, उसको सेल ऑफ कर दिया, उसके शेयर्स बेच दिए, और वहां से डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा वापस आया है गवर्नमेंट के पास, दैट इज रिड्यूसिंग दी एसेट्स। गवर्नमेंट ने कहीं से लोन ले लिया, दैट इज इंक्रीजिंग दी लायबिलिटीज। अंडरस्टूड? These are non-recurring, मतलब ये जो चीजें हैं, ये जो पैसा आ रहा है ये एक बार में आएगा, ये बार बार पैसा आने वाला नहीं है। फर्स्ट, मार्केट बोरोइंग्स, गवर्नमेंट जो मार्केट से लोन उठाएगा। लोन रिकवरीज, जो गवर्नमेंट ने लोन दिया था और वो लोन का पैसा वापस आया। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, गवर्नमेंट ने अगर कुछ बेच दिया तो वहां से जो पैसा आया, दैट विल बी कैलकुलेटेड एज कैपिटल रिसीट। The revenue receipts and capital receipts are the part of receipts of the receipt side of the budget. So budget के दो parts हैं, one is receipts, another is expenditure. This receipt can be revenue receipt or capital receipt. Expenditure can be revenue expenditure or capital expenditure. Understood? चलो, next thing which we need to remember is that government का जो capital receipt है वो कैसे calculate होता है? पहले गवर्नमेंट ने लोन बनाया, कितने का लोन लिया? कहीं से, किसी से उधार लिया लोन 10 लाख करोड़ रुपीस का। गवर्नमेंट ने कहीं पे डिसइन्वेस्टमेंट किया 1 लाख करोड़ रुपीस का। गवर्नमेंट ने कहीं से लोन वापस लिया, स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया था, उन्होंने वापस पे कर दिया उस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट। रिमेंबर, प्रिंसिपल अमाउंट, नॉट इंटरेस्ट पेमेंट। यूपीएससी यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर देगा, वो इंटरेस्ट पेमेंट लिख देगा और आप उसको कैपिटल रिसीट्स में कैलकुलेट कर लोगे, तो द टोटल विल बी 11.5 lakh crore rupees of total capital receipts which are received by government only because of market borrowings, disinvestment and loan recovery. Remember that it creates liability or reduces assets. These were the key terms which UPSC asked in PYQ. That is why I have included them here. चलो, next thing which you need to remember is revenue expenditure, जो मैंने अभी बोला। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? गवर्नमेंट का वो खर्चा जो बार बार हो रहा है, डे टू डे बेसिस पे ये खर्चा हो रहा है, मंथली ये खर्चा हो रहा है। जैसे मंथली हम सैलरीज देते हैं, पेंशन देते हैं, किनको? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। जैसे सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट, पीएम किसान योजना के अंदर सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट, एलपीजी के ऊपर सब्सिडी देती है, यूरिया के ऊपर सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चावल, गेहूं, उसके ऊपर सब्सिडीज देती है। इंटरेस्ट पेमेंट्स, गवर्नमेंट ने जो कहीं से लोन लिया था, अब उस लोन का इंटरेस्ट पे करना है, तो दैट विल बी कैलकुलेटेड ओवर हियर। So total revenue receipts, this revenue expenditure of government will be salaries plus subsidies plus interest, that will be total. Now ये जो numbers मैंने यहाँ पे लिए हैं, this is just for an example, these are hypothetical numbers, ये exact economic survey से नहीं लिए गए हैं। जब हम economic survey discuss करेंगे आज या कल में, तो उसी टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि करंटली गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है और पास्ट में कितना रहा है। जब हम बजट डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पे भी मैं बोलूंगा कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, कितना रेवेन्यू और रिसीट्स गवर्नमेंट ने लिए। अंडरस्टूड यहां तक? बिकॉज यूपीएससी ने भी लास्ट टाइम जब क्वेश्चंस बनाए थे तो उन्होंने भी हाइपोथेटिकल नंबर्स लिए थे और उन्होंने बस यही पूछा था फिस्कल डेफिसिट कितना होगा और प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा। अंडरस्टूड? व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? ये वो खर्चा है जो गवर्नमेंट एसेट्स बनाने के लिए करती है, जस्ट टू क्रिएट एसेट्स। अंडरस्टूड? नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ने कोई हाईवे बनाया,
गवर्नमेंट ने कोई हाईवे बनाया, दैट इज एन एसेट फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहीं पे डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद लिए। नाउ रिमेंबर, यहाँ पे एक इंसान को ऐसा लग सकता है दैट यार डिफेंस इक्विपमेंट्स हमने खरीद तो लिए बट यहाँ से तो कुछ होने वाला नहीं है, हम तो यहाँ से कुछ पैसा कमाने वाले नहीं है, ये तो कैपिटल में नहीं आएगा। बट दिस इज द कैपिटल ऑफ कंट्री। लोन रीपेमेंट, अगर लोन गवर्नमेंट वापस रीपे कर रही है, लोन का प्रिंसिपल अमाउंट अगर गवर्नमेंट वापस पे कर रही है, दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अंडरस्टूड? सो देयरबाय कैपिटल एक्सपेंडिचर इट क्रिएट्स एसेट्स, इट क्रिएट्स एसेट्स मतलब नए एसेट्स बनाता है। इट रिड्यूसेस द लायबिलिटीज, ये गवर्नमेंट के जो कर्जा है, जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, उसको डिक्रीज करता है। इट प्रमोट्स द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशन। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना है बेसिक डेफिनेशन। व्हाट वाज द बेसिक डेफिनेशन? कैपिटल इज समथिंग व्हिच विल जनरेट फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ बेनिफिट्स। अंडरस्टूड? सो व्हाट आर द फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ बेनिफिट्स ओवर हियर? हाईवे से रोड ट्रांसपोर्ट इजी होगा, लॉजिस्टिकल कॉस्ट कम हो जाएगा। डिफेंस इक्विपमेंट से हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी। लोन को रीपे करने से हमें कल को इंटरेस्ट पेमेंट कम करना पड़ेगा। Understood? Done? Now, one more thing which we need to understand is taxes. जो हमने अभी तक taxes पढ़े, उन taxes में दो definitions आती है, दो types होते हैं taxes के। One is direct tax, another is indirect tax. Indirect tax आपको simply पता चलेगा ऐसे कि आप कल को मार्केट गए, आपने ये रिमोट खरीदा। इस रिमोट को खरीदने के टाइम पे आपने बोला कस्टमर, ये रिटेलर को, उस दुकानदार को, इसका बिल कितना हुआ? Now that person will tell you that it is worth 1000 rupees, तो आपने 1000 rupees पे कर दिया। बट ये जो रिमोट था ये एक्चुअल में 900 rupees का था और 100 rupees इसके ऊपर टैक्स लगा था। This is an indirect tax collected from the consumer. The incidence of indirect tax is on the consumers, not on the retailers and wholesalers. Understood? So thereby indirect tax incidence is on goods and services. Remember this? Its transferability, that is it cannot be shifted. इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा कंज्यूमर को ही पे करना है और ये शिफ्ट होता है। इट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम whom? फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर टू द रिटेलर टू द कंज्यूमर। अंडरस्टूड? जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? इट्स इंसिडेंस इज ऑन इनकम एंड वेल्थ। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो सरकार आपसे 1% टैक्स का एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ टैक्स लेगी। अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए है तो कुछ और टैक्स ब्रैकेट में आप आएंगे। अगर आपकी इनकम 30 लाख रुपए है तो आपका टैक्स ब्रैकेट चेंज हो जाएगा। इट मींस दैट जितनी इनकम उतना टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, डायरेक्ट टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ। वेल्थ के ऊपर भी टैक्स लगता है बट दैट इज नॉट ओवर हियर। प्रॉपर्टी टैक्स हमारे यहाँ नहीं लगता। ट्रांसफरेबिलिटी, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड। मतलब इस चीज का ये है, डायरेक्ट टैक्स उसी इंसान के ऊपर लगेगा जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जिसकी इनकम होगी 12 लाख रुपए, जिसकी इनकम होगी 10 लाख रुपए, जिसकी इनकम होगी 15 लाख रुपए, उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने ये इनकम जो है इस कंपनी से जनरेट की है या मैंने ये इनकम यहां से कमाई है तो आप जो है टैक्स उधर लगाओ, मेरे ऊपर मत लगाओ। नहीं, ये जो टैक्स है ये उसी इंसान के ऊपर लगेगा। इट कैन नॉट बी शिफ्टेड। अंडरस्टूड? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आर सच एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। Understood? Done? What is surcharge and cess? See, surcharge is levied on the tax amount. Cess is also levied on the tax amount. Understood? The purpose of surcharge is to generate revenue or to diversify, do revenue augmentation कि गवर्नमेंट के पास जो ये पैसा आ रहा है ये किस माध्यम से आ रहा है. ये सरचार्ज है, इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है या सेस है. दिस इज शेयर्ड विद स्टेट्स. ये जो टैक्स कलेक्ट होगा इसका कुछ हिस्सा स्टेट्स को भी दिया जाएगा. Like the high income surcharge which government imposes on those who have higher incomes. सेस लगता है टैक्स अमाउंट के ऊपर. ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है. फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेस फॉर एग्जांपल 0.2% का लगाया जाएगा पेट्रोल के सेल्स के ऊपर. मतलब इसका ये है कि यहां से जो रेवेन्यू कैलकुलेट होगा ये एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है. किस लिए कलेक्ट किया जाता है? एजुकेशन के लिए. या फिर हम लगाएंगे डी एडिक्शन टैक्स. लाइक
अगर जो सिगरेट बनाने वाली कंपनीज है, अल्कोहल बनाने वाली कंपनीज है, अगर उनके ऊपर टैक्स ऑन टैक्स लगा दिया, सेस लगा दिया, टैक्स अमाउंट के ऊपर एक 2% या 1% का टैक्स लगा दिया, सेस लगा दिया, इसलिए क्योंकि आप जो सिगरेट बेच रहे हो उससे लोग एडिक्ट हो रहे हैं और उसकी वजह से गवर्नमेंट को कल को एक्सपेंडिचर लगता है फॉर डी एडिक्शन सेंटर्स, उसके लिए टैक्स लगाया, उस एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए टैक्स लगाने को सेस बोलते हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेस, एंड दिस इज नॉट शेयर्ड विद द स्टेट्स, अंडरस्टूड, कलेक्टेड बाय सेंटर एंड केप्ट बाय सेंटर। वन मोर थिंग, बजट जब पेश होता है पार्लियामेंट में तो कैसे बनता है और कैसे इसको पास किया जाता है, बजट का प्रेजेंटेशन टाइमलाइन क्या है। फर्स्ट, पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट होगी पार्लियामेंट में, जैसे हो गई अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट कर दिया पार्लियामेंट में और वो इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश हो गया आराम से। नेक्स्ट, इसके बाद यूनियन बजट अनाउंस होता है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है बजट इन द लोकसभा। रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज मेंशन्ड दैट फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो यूजुअली जो ये बजट प्रेजेंट करता है इट इज ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, बट लास्ट टाइम जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने लिखा था प्राइम मिनिस्टर। वहां पे इंसान को सतर्क रहना है और समझना है कि ये प्रेसिडेंट के बिहाफ पे करता है या पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ, अंडरस्टूड। देन यूनियन बजट पेश होने के बाद एक जनरल डिस्कशन होता है और उसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट्स रखी जाती है, मिनिस्ट्री वाइज एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, हर एक डिमांड को डिस्कस किया जाता है, हर एक डिमांड के ऊपर वोट होता है और डिमांड्स जो है पास होती है। उसके बाद आती है फाइनेंस बिल और उसके बाद आती है अप्रोप्रिएशन बिल, जो ये इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आए थ्रू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अंडरस्टूड यहां तक, डन। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ डेफिसिट्स। डेफिसिट असल में होता क्या है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है डेफिसिट की, कि जब आपके पास किसी चीज की कमी हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे कमरे में बंद हैं या फिर आप किसी हायर ऑल्टीट्यूड पे चले गए जहां पे हवा नहीं है, द एयर इज डेफिसिट, या आप किसी ऐसी जगह पे चले गए जहां पे लोग बहुत ज्यादा है बट खाना नहीं है, सो दैट कंट्री इज फेसिंग फूड डेफिसिट। सिमिलरली हमारी गवर्नमेंट में भी रेवेन्यू या मनी का डेफिसिट हो सकता है, पैसे का डेफिसिट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हैं और शॉर्ट टर्म में हमारे पास रेवेन्यू कम होता है, अंडरस्टूड, समझ में आ गया, दैट इज डेफिसिट। सो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो देन द रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू रिसीट्स, कि गवर्नमेंट जो डेली बेसिस पे कमा रही है, जो एक साल के अंदर गवर्नमेंट की इनकम है, दैट इज लेस देन द एक्सपेंडिचर व्हिच गवर्नमेंट इज इनकरिंग इन दैट वन ईयर, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सीडिंग, रेवेन्यू expenditure is more than revenue receipts of the government. This is critical indicator of government's borrowing needs, and thereby you must remember that government को consumption needs यहाँ पे बढ़ जाती है, current consumption needs, government के पास जो अभी का खर्चा है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये समझना है that government यहाँ पे अब जाके ये खर्चा कहाँ से निकालेगी, जब पैसे ही नहीं है तो गवर्नमेंट बोरो करती है, बट दिस बोरोइंग इज डेट्रीमेंटल। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आज के खर्चे के लिए लोन क्रिएट कर रही है, उधार ले रही है। ये ऐसी बात है कि आपके पैसे जो है एक महीने के अंदर अंदर जो आपको फैमिली ने पैसे भेजे थे, पेरेंट्स ने पैसे भेजे थे, किसी ने भी पैसे भेजे थे, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, वो आपने पहले 10 दिन में ही खत्म कर लिए। अब आपके पास 20 दिन का टाइम पीरियड बचा है, खाने के लिए पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप किसी दोस्त से उधार ले लेंगे। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आपने उधार तो लिया, उसको बोला मैं अगले महीने की पहली तारीख को वापस दे दूंगा। ये खर्चा आपने कर लिया, आपके पास इनकम ही नहीं है इस खर्चे को फुलफिल करने की। अगले महीने जो पैसा आएगा उसमें से आप पिछले महीने का कर्जा उतार रहे होगे, तो अगले महीने फिर डेफिसिट होगा। डेफिसिट कैन बी इनकर्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट फॉर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अंडरस्टूड। चलो, नाउ वन मोर थिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर इज revenue expenditure minus revenue receipts equals to revenue deficit. Revenue deficit equals to what? Revenue expenditure minus revenue receipts. What it means is that government borrowings for day-to-day expenses, how much government is borrowing for its day-to-day expenses. Its impact is that it is negative in nature. It signals the long-term fiscal health of a nation. कि अगर किसी नेशन का रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस नेशन के पास अभी फुलफिल करने के लिए दे डू नॉट हैव इनफ
money to fulfill their current needs. That is the problem. Understood? Now moving ahead, what is revenue deficit? How it is calculated? First, revenue expenditure कितना था, revenue receipts कितने थे? Revenue deficit equals to revenue expenditure minus revenue receipts, that is 5 lakh crore rupees. Government borrowings for consumption, this is a red flag for fiscal health of a nation. Understood? Remember the formula, and that will help you to solve all of the questions in exam. The most important indicator for a nation is fiscal deficit. अब fiscal deficit का मतलब क्या होता है? This is the most critical deficit. It measures or it is an indicator of macroeconomic stability. ये बताता है that एक government कितनी stable है in terms of economy, in terms of revenue. It measures the total government borrowing requirements, कि गवर्नमेंट को पूरा खर्चा, चाहे वो कैपिटल ये एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू रिसीट हो, टोटल जो गवर्नमेंट ने बोरो किया है पैसा वो कितना है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास खर्चे थे, अब ये शॉर्ट टर्म थे या लॉन्ग टर्म थे, बट ये खर्चे गवर्नमेंट ने कर दिए. अब प्रॉब्लम ये है इन खर्चों को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट के पास सोर्सेज नहीं है इनकम के, इसीलिए ये बाहर से बोरो कर रही है. अब ये मार्केट से बोरो करे, पब्लिक बोरोइंग्स करे, या फिर ये सॉवरेन डेट इशू करे, या सॉवरेन बॉन्ड्स इशू करे, या बाहर से लोन ले ले. अंडरस्टूड? सो देयरबाय टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स excluding borrowings. Remember, excluding borrowings. The significance is that it shows how much government needs to borrow to meet all the expenses of government. Remember this? That is the basic definition of fiscal deficit. How fiscal deficit is done? Total expenditure कितना है government का? Total receipts कितने हैं government के? Total expenditure was 45 lakhs. Total receipts जो government ने generate किए, जो government के पास income आई, that is 30 lakh rupees. Total deficit with the government will be 15 lakh crore rupees. This represents the total borrowing requirement of government. So thereby the formula would be that total expenditure minus total receipts equals to fiscal deficit. Understood? चलो next is primary deficit. अब सर ये primary deficit क्या होता है? एक और चीज है कि देखो गवर्नमेंट ने पास्ट में भी लोन ले लिया, गवर्नमेंट अभी भी लोन ले रही है, बट समझना यह है कि जो पास्ट लोन लिया हुआ था उसकी इंटरेस्ट पेमेंट अभी भी कर रहे हैं, या ये भी समझ लो जो लोन लिया हमने एक्चुअल में एक्सपेंडिचर वो था और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पेमेंट भी करनी है. तो जब हम एक्चुअल डेफिसिट देखते हैं और इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटाते हैं, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट. सो देयरबाय फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट का है, फिस्कल डेफिसिट टोटल बोरोइंग्स माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट्स हटाने के बाद जो बचेगा रिवील्स द करंट ईयर्स फिस्कल पोजीशन विदाउट द बर्डन ऑफ पास्ट डेट. जो पुराना लोन लिया हुआ था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स कर रहे हैं, उन इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटाने के बाद ये समझ आता है कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, एक्चुअल डेफिसिट कितना है. दिस इज मोर टू द रियलिटी. इट स्टार्ट्स विद फिस्कल डेफिसिट, टोटल बोरोइंग्स व्हिच आर नीडेड बाय द गवर्नमेंट. इससे हम निकालते हैं कि पास्ट डेट के ऊपर जितना हमारा डेट एक्सपेंसेस है, चाहे वो इंटरेस्ट पेमेंट्स है, उसके बाद we get to know what is the primary deficit of the government. Done? One more thing which we need to remember, that is primary deficit. Fiscal deficit हमारे पास कितना था? 15 लाख करोड़ रुपीस का, याद है? इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पेमेंट्स देनी पड़ रही है, पे करना पड़ रहा है 5 लाख रुपए. तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स गिव्स अस प्राइमरी डेफिसिट, दैट इज 10 लाख रुपीस. सिंपल फॉर्मूला, अगर आपको याद रहे तो लास्ट ईयर के 2 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाते पीवाईक्यूज जो यूपीएससी ने पूछी थी. क्लियर? नाउ बजट का मतलब क्या है? जो हमने पहले भी बोला, बजट एक्चुअली इज द टोटल एक्सपेंडिचर, और बजट डेफिसिट, बजट जो हमने पहले भी बोला था क्या, बजट इज एक्चुअली द समरी ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर एंड ऑल द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट. टोटल रेवेन्यू कितना आया, टोटल रिसीट्स कितने आए और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, इन दोनों का समेशन होता है बजट. इन दोनों का समरी होता है, एक स्टेटमेंट होता है बजट. बट बजट डेफिसिट का मतलब क्या है कि जब बजट ही डेफिसिट में हो तो इट इज एक्चुअली द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट माइनस द टोटल रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग बोरोइंग्स. रिमेंबर, इंक्लूडिंग बोरोइंग्स. डू यू रिमेंबर दैट हमने यहां पे लिखा था दैट फिस्कल डेफिसिट इज टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. ठीक है, total expenditure minus total receipts excluding borrowings. Now what is this? Budget deficit. Budget deficit is something that is total expenditure
minus total receipts including borrowings. बस remember it. It's a main difference between fiscal deficit and budget deficit. Current status, this is no longer used because currently we are targeting majorly the fiscal deficit of the government because that is more broader in nature. Understood? Earlier UPSC used this term and we were more concerned about this, not now. Simple. टोटल एक्सपेंडिचर 45 लाख रुपीस का था, टोटल रिसीट्स हमारे पास 42 लाख करोड़ रुपीस के थे. दैट इज व्हाट विल गिव अस द बजट डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज जस्ट 3 लाख रुपीस. क्लियर? नाउ व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है कि जब हम ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड का मतलब क्या है, हमने एक्सपोर्ट भी किया, हमने इंपोर्ट भी किया. अब जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे तो हम सरप्लस में होंगे और हमारे इंपोर्ट्स कम होंगे तो हम ट्रेड सरप्लस में होंगे. जब हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा होंगे और एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो हम ट्रेड डेफिसिट में होंगे. बहुत सिंपल सा मतलब है इसका. when the imports exceed the exports, जब इंपोर्ट्स ज्यादा होंगे और एक्सपोर्ट्स कम होंगे, in goods trade मतलब visibles only, this indicates that country is more dependent on foreign products. इसका मतलब यह है कि ये जो कंट्री है इसको जरूरत है ज्यादा बाहर से आने वाले सामान की, अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटीज उतनी नहीं है, जितनी इसकी डिमांड है उतनी यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही है. अंडरस्टूड? नाउ इट मेजर्स द गुड्स ओनली, इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द फिजिकल मर्चेंडाइज ऑफ गुड्स. It is part of the current account, not part of the capital account of BOP, that is balance of payments. It is one of the key components of balance of payment. Understood यहाँ तक? That is trade deficit. One more thing which you need to remember is how to solve trade deficit. Export was this much, imports was this much, and thereby our trade deficit is $150 billion. Clear? Again, the numbers have been used just to make sure that you understand it properly. Clear? 150 billion trade deficit shows that the country is more dependent on the foreign goods. So, one more thing which we need to understand is what is current account deficit. Capital account and current account are two parts of balance of payment. Current account and capital account. Now, current account has the visibles and invisibles, the trade part of it. Current account says that when the current account payments exceed the current account receipts, encompassing current account में क्या क्या आएगा? ट्रेड, जो हमने गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, सर्विसेज, जो सर्विसेज हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करी, एंड द इनकम विच वी जनरेटेड फ्रॉम आउटसाइड और फॉरेनर्स जनरेटेड फ्रॉम आवर नेशन, एंड द ट्रांसफर्स, वो पैसा जो बाहर से यहाँ आया, चाहे वो रेमिटेंसेस थी या नहीं, और जो पैसा यहां से बाहर गया इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस. नाउ दिस ऑल इज इन दी करंट अकाउंट. अब अगर यहाँ पे पेमेंट्स ज्यादा है देन द रिसीट्स, देन करंट अकाउंट इज इन डेफिसिट. हाई करंट अकाउंट डेफिसिट मींस दैट देयर इज मोर प्रेशर ऑन डोमेस्टिक करेंसी. इट मींस कि हम ज्यादा डिपेंडेंट है और हम जो है ज्यादा सॉर्ट करते हैं, हम बहुत ज्यादा, हमें डॉलर की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो रेमिटेंसेस हो, तो हमें डॉलर ज्यादा लेना पड़ता है. इसका मतलब ये है कि ये जो करेंसी है इन कंपैरिजन टू डॉलर विल बी वीकर. अंडरस्टूड? बिकॉज हमारी डिपेंडेंस है डॉलर के ऊपर ज्यादा, हमें डॉलर लेना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ करंट अकाउंट. वन मोर थिंग, फॉरेक्स रिजर्व्स. तो इसका मतलब ये है कि इस कंट्री के पास बहुत सारे फॉरेक्स रिजर्व्स होने चाहिए. जैसे हमारे पास आज की डेट में इट इज अराउंड $700 बिलियन एंड इट एट लीस्ट गिव्स अस एन इंपोर्ट कवर ऑफ 11 मंथ्स currently as per the economic survey 2026. Done. So this was all about this current account deficit. Current account में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, current account में कौन कौन सी चीजें आती है? ट्रेड बैलेंस, that is the balance between export and import of goods. सर्विसेज, चाहे कोई भी सर्विस हो, वो आईटी हो, वो टूरिज्म हो, वो कंसल्टिंग हो, इन सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट. अंडरस्टूड? इनकम एंड ट्रांसफर्स, दैट इज जो इन्वेस्टमेंट बाहर से यहाँ आया, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ से बाहर गया, चाहे वो रेमिटेंसेस है, चाहे वो एड है, ये सब चीजें, ये तीनों चीजें किसका पार्ट है? करंट अकाउंट का. दिस टू वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी. यूपीएससी ने करीब करीब 42 क्वेश्चंस पूछे हैं करंट अकाउंट्स, ये एक्सटर्नल सेक्टर से. कितने? 42 क्वेश्चंस एक्सटर्नल सेक्टर से पिछले 10 साल. तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत सारा, इसको समझना. अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, ट्रेड डेफिसिट, नेट सर्विसेज, नेट ट्रांसफर्स एंड करंट अकाउंट. जो हमारे पास बनता है करंट अकाउंट, वो इन तीन चीजों का बनता है करंट अकाउंट. यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है
This calculation shows us that how much dependence is there in terms of current account, how much dependence of domestic economy is there on the foreign economy, on the other country, कि हम फॉरेन से कितना इंपोर्ट करते हैं, हम कितने डिपेंडेंट हैं फॉरेन के ऊपर. अंडरस्टूड. चलो, सो देयर बाय करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर इसका इंपैक्ट हम देखें, सो ट्रेड डेफिसिट, इट इज द पोर्शन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट फ्रॉम गुड्स ट्रेड. सर्विस ऑफसेट्स, दैट इज हाउ मच सर्विसेज रिड्यूस द डेफिसिट, क्या हमने गुड्स का कितना एक्सपोर्ट किया और सर्विसेज का कितना एक्सपोर्ट किया, हमने गुड्स का कितना इंपोर्ट किया और सर्विसेज का कितना इंपोर्ट किया. नाउ रिमेंबर, अगर किसी कंट्री में गुड्स ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं और किसी कंट्री में सर्विसेज ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, इट मींस दैट कंट्री इज डोमिनेट इन दैट वन सेक्टर. जैसे चाइना जो है वो गुड्स बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, दैट इज व्हाई चाइना को बोला जाता है क्या, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. जो हमारा देश है, हमारा नेशन इंडिया, ये सर्विसेज बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड. सो देयर बाय अगर सर्विसेज में सरप्लस है और गुड्स में डेफिसिट है, देन टू इट कैन बैलेंस. और अगर गुड्स में सरप्लस है और सर्विसेज में डेफिसिट है, देन ऑल्सो करंट अकाउंट कैन बैलेंस इटसेल्फ. बट ये हमें पता चलता है दैट कि हमें किस सेक्टर में डोमेस्टिक लेवल पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, हमें गुड्स या प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ानी है, या गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ाना है, या सर्विसेज का एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ाना है, ये हमें कौन बोलेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट. अंडरस्टूड. और ट्रेड डेफिसिट हमें ये बोलेगा. सो देयर बाय इफ a currency depreciation, if a country is having more numbers in trade deficit and less numbers in services, then you must understand that ये current account deficit हमें ये बताएगा कि करेंसी की डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए. फॉरेक्स रिजर्व्स अगर डिप्लीट हो रहे हैं किसी कंट्री के, तो ये भी हमें पता चलेगा कि हमें फॉरेक्स रिजर्व्स को वापस रिजुविनेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, हमें फॉरेक्स कितने रखने पड़ेंगे और कितने नहीं रखने पड़ेंगे. दिस टू इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच आर वी डिपेंडेंट ऑन द, और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, हाउ मच डिपेंडेंट आर वी ऑन अदर सेक्टर्स, अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. दिस impacts the credit rating of a nation. What are credit ratings? Now see, अगर कोई नेशन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, अगर कोई नेशन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर, और इस नेशन को इंपोर्ट बिल जो इसका है वो बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये है दैट दिस नेशन हैज नाउ मोर डिपेंडेंस ऑन क्रेडिट. अब इस नेशन के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा है किस चीज का, इंपोर्ट्स का. दिस विल इम्पैक्ट कि कल को अगर इस नेशन को लोन चाहिए होगा, तो उस लोन की जो रेटिंग्स होती है कि क्या ये कंट्री टाइमली वापस रीपेमेंट कर रही है या नहीं, दैट विल बी इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ द करंट अकाउंट डेफिसिट. अंडरस्टूड. चलो, द लास्ट थिंग इज कंपैरिजन बिटवीन डेफिसिट इंडिकेटर्स. एंड फॉर एग्जांपल हमने अभी तक जो स्टडी किया, जो पढ़ा, दैट वाज रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट. ये 5 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले. क्लियर. हमने ये समझ लिया दैट बोरोइंग्स फॉर कंजप्शन, दे गिव अस द वर्स्ट फिजिकल सिग्नल्स अबाउट द हेल्थ ऑफ अ नेशन, अबाउट द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी. फिजिकल deficit talks about the total borrowings and it shows us the primary stability indicator. This is the main stability indicator of an economy. Primary deficit, current year's stress, कि आज इस साल हमें कितना खर्चा उठाना पड़ेगा. Primary deficit actually shows us कि past burden हमारे पास कितना है और present हमने कितना नया burden लिया हुआ है loans के सूरत में. This excludes the past debt burden. Trade deficit is about goods only. And current account deficit is comprehensive external balance measure. It shows us comprehensively कि total external dependence कितना है. Now at the last हमने क्या क्या डिस्कस किया है अभी तक. Constitutional provisions, बजट के पीछे और इकोनॉमिक सर्वे के पीछे तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं है. इट इज जस्ट एन एडवाइजरी डॉक्यूमेंट. We also discussed some of the data, concepts and differences. We also discussed the timeline of budget. और यहाँ पे हमारा ये सेशन होता है कंप्लीट. आई बिलीव दैट आप सब लोग अब रेडी है इकोनॉमिक सर्वे और बजट को एनालाइज करने के लिए. तो मेरे साथ बने रहिए. जब मैं नेक्स्ट सेशन में आऊँ और उस टाइम में मैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करूँ, तो आप मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़िए और उस वीडियो को देखिए और देखिए कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आप तुरंत सॉल्व कर लेते हैं.
With this, I wish you all the best. Thank you for being here. Jai Hind.